السلام علیکم ناظرین، حماقتی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ اقرا حارث. میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال اور مودی. ناظرین آج ہم کچھ اہم باتیں بھی کریں گے، لیکن ذرا ہلکی سی گپ شپ ذرا ہم آفتاب صاحب اور مودی کے ساتھ کرتے ہیں. مودی بتائے گا کیا حال ہے آپ کا؟ آج آفتاب صاحب نے نوٹ کی اتنی فنکی قسم کی انہوں نے آج شرٹ پہنی ہوئی ہے، لگتا ہے موسم کا اثر. آج لاہور کا موسم بھی کافی اچھا رہا ہے. نہیں، یہ آیا کراچی سے ہے، اور جب بھی فنکی نظر آتا ہے نا سمجھ لیا کرو یہ بڑا بند سمر کے وہاں سے آتا ہے. یار آج میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے. کیوں، کیا ہو گیا؟ یار میں کراچی سے آیا ہوں، اتنی دور سے پی آئی اے پہ بیٹھ کے آیا ہوں. اب یہ پیسے مانگے گا؟ میں پاگل ہوں، پیسے مانگا. پی آئی اے تو باکمال لوگ، لاجواب سروس. بڑی ماشاءاللہ آج کل تو بالکل فٹ جا رہی ہے یہ بات ان کے اوپر. اچھا یہ بتائیں، سفر تو آپ کراچی سے لاہور کا کرتے رہتے ہیں، اور فارغ اوقات پہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ وہ فارغ ٹائم ملے گا تو کچھ کر دوں گا نا. میں وہاں جاتا ہوں، وہاں ریکارڈنگ والے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تھوڑے نوٹ چھاپا کرو. وہ یار نوٹ کون کم بخت چھاپ ہے؟ میں نے مشین لگائی ہو یا نوٹ چھاپنے والی کو. یار اتنا جو کام کرتے ہو اس کا مطلب تو یہی ہے. نہیں تبھی لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں. اتنے زیادہ جو چینل کھول دیے ہیں تم لوگوں نے، تقریب پہ تول کے بک رہے ہیں چینل. اچھا لوگ ان سے پیار تو کرتے ہیں آفتاب صاحب، ہمیں فیڈ بیک اتنا اچھا آتا ہے کہ مودی جو ہے عام عوام کی آواز بنتے ہیں. کبھی پہلوان بن کر آتے ہیں، کبھی گرو بن کے آتے ہیں. نہ بتاؤ جیلس ہو رہا ہے جب کو اس کا رنگ لال سوا ہو گیا. میں تو خود بڑا پیار کرتا ہوں. نہیں یہ تو ہے، ویسے پیار مجھے بڑا کرتے، دانتا بھی بہت ہے مجھے. اچھا آفتاب صاحب آپ کو ہمارا شو کیسا لگا؟ لیکن میں بتاتا ہوں، پہلے میں تعریف کر لوں کہ جو اس کا اٹائر، اس کے پاس 5-7 بڑے زبردست بہروپ ہیں، لیکن یاور حیات صاحب چونکہ میری اپنا عقیدت کا ان سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کے استاد بھی رہے ہیں. میرے استاد بھی ہیں، ان کے استاد بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. وہ بہت بڑا اثاثہ ہے. یہ اتنا خوبصورت کرتا ہے نا وہ کمال ہے. میں ہمیشہ ایک سے زائد مرتبہ کمپلیمنٹس دے رہا ہوں، آج بھی دے رہا ہوں. مہربانی جناب دیسی سکرات صاحب، آج آپ نے میری تعریف کی ہے. اچھا دیسی سکرات، یہ پتہ نہیں مجھے کیوں کہتا ہے. تو تم سکرات سے کم ہو، تمہارے اندر کہیں نہ کہیں روح ہے اس کی ضرور. دیسی کیوں کہتے ہو مجھے؟ اس لیے کہ تم پاکستانی ہو نا یار. دیسی سکرات. سر یہ ویسے ہے پاکستانیوں کی عجیب ہے، پاکستان کی کوئی چیز ہو جائے تو وہ دیسی ہو، چاہے وہ ہم بہت اچھی کوالٹی. اور سکرات سے ہم غیر ضروری طور پہ متاثر ہیں. یہاں بھی بڑے بڑے ذہین لوگ، بہت بڑے بڑے دانا لوگ اس زمین نے پیدا کیے ہوئے ہیں. اسی کی لڑی چلتی آ رہی ہے نا، اسی کی لری. بہرحال بات آپ شو کی کر رہی تھی، تو شو میرے حساب سے تو آپ کا شو بہت اچھا ہے، بہت الحمدللہ. بڑی تعریفیں ہیں یار، بڑی تعریفیں. اور مجھے اس میں جو سنجیدہ کمنٹ دینے کا موقع ملتا ہے میں اس کو بہت انجوائے کرتا ہوں. اور بہت سی باتیں جو میرے دل میں ہوتی ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ کمبینیشن بڑا خوبصورت ہے کہ آپ انتہائی سنجیدہ بات لائٹر نوٹ کے اوپر کر دیں، اور اس کا اثر بھی ضائع نہ ہو، اثر زائل نہ ہو، اور اس کے اندر مناٹنی نہ آئے کہ آپ بات کرتے جائیں. ایک لمبی بحث 7-8 منٹ جو ہے وہ ایک حد تک لوگ دیکھ سکتے ہیں، لوگ پھر فوکس نہیں کر پاتے، بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، بور ہو جاتے ہیں. اچھا ایک وقت تھا کامیڈی کے لیے لوگ تھیٹرز کا رخ کرتے تھے، اور اب ہم ٹی وی چینلز کی بھرمار ہے، کامیڈی شوز کی بھرمار ہے. نہیں، تھیٹر کا تو بیڑا گرک ہو چکا ہے سرے سے. ایک بہت بڑا ادارہ تھا ہمارا تھیٹر جو ہے، جو کامیڈی پاکستان میں خاص طور پر لاہوری تھیٹر نے کریٹ کر دی ہوئی ہے. اس جیسی کامیڈی نہ شاید کبھی تھیٹر خود بھی چاہے گا تو نہیں کر سکے گا. فلمیں، ٹی وی اس کے بعد ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ بات. لیکن اب چونکہ ہر ادارہ رو بزوال ہے، کریٹو ادارہ. کچھ ادارے بڑے ترقی بھی کر رہے ہیں، مثلا میڈیا ترقی کر رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا بہت اوپر جا رہا ہے. آپ دیکھیے، اور اس میں بڑے مواقع ہیں، ابھی مزید فلرش کرنا ہے اس نے. الیکٹرانک ہے نا، اس میں کرنٹ ہے بہت زیادہ اس وجہ سے. یہ بتائے گا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے کامیڈی کو سیریسنس کے ساتھ بلینڈ کر کے آپ پریزنٹ کرتے ہیں. ہم اکثر کلاسیکل ڈراماز شیکسپیئر کے دیکھیں تو اس میں اس کا یہ کانسیپٹ ہوتا تھا کہ وہ سیریس کے ساتھ، ٹریجڈی کے ساتھ کامک رول ایک کورس کی صورت. پھر دیکھ لیں آج بھی شیکسپیئر زندہ ہے کہ نہیں، تو اس کیمسٹری کی وجہ سے، اس کمبینیشن کی وجہ سے زندہ ہے. صرف کامیڈی کافی نہیں ہے، اور صرف سنجیدہ چیز بھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سنجیدہ شخص جو ہے وہ اٹھ کے کامیڈی کرنا شروع کر دے. میں نے دیکھے ہیں بعض بڑے سیریس مائنڈڈ اینکرز، وہ گفتگو کرتے ہوئے غیر ضروری طور پہ اپنی بات پہ ہنس پڑتے ہیں. صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے پھیکی سی بات ہے یار، سیریس بات ہے، اس پہ ہنسنے کا جواز کوئی نہیں تھا. اگر کسی نے تمہاری شرٹ کی یا ٹائی کی تعریف کی ہے تو ضروری ہے کہ تم اس پر ایک ہلکی سی ایک مخولیہ بات کرو. قطعاً ضروری نہیں ہے، تاکہ ایک اسمائلی فیس کے ساتھ. بالکل نہیں. باتوں کا سٹائل ایسا ہونا چاہیے.
what is wit? Wit is not comedy, wit is wisdom. आप जहानत की बात करें, लोग इसको एंजॉय करेंगे. अच्छा आफ्ताब साहब, कुछ लोग कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे जाके जो चीज़ प्रेजेंट की जाए वो क्लिक करती है. कॉमेडी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो फौरन आपको क्लिक करेगी? कॉमेडी में पहली बात तो ये कि कॉमेडी का जो हदफ है, कॉमेडी का जो टारगेट ऑडियंस है, वो ग्रास रूट से लेकर टॉप एपेक्स तक होना चाहिए. बिल्कुल. आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जब देखें तो वो एंजॉय करें, वो खुश हों कि यार एक चीज़, एक ताजगी का एहसास हुआ है. और निचले तबके का एक रेडीबान जो है, सुबह से तंग आया हुआ है ज़िंदगी से, सुबह से शाम तक उसने बड़ा एक कठिन सफ़र तय किया है और बड़ा खुश है कि एक दिन और ज़िंदगी का जो है वो मुकम्मल हुआ. उसके लिए अगर आप 2-4 मज़े की बातें भी करें और उसके इंतहाई महदूद इल्म में इजाफा भी करें तो बहुत एंजॉय करेगा. वो भी खुश, ये भी खुश, और सबसे बढ़कर अल्लाह खुश होता है कि आप मैसेजिंग भी कर रहे हैं, एंटरटेन भी कर रहे हैं, और एक अच्छा काम है जिसको आप अच्छे आसान तरीके से आगे वैसे भी ताबी अल्लाह की मखलूक को खुश करना बड़े सवाब का काम है. ये तो है. अच्छा मोदी, ये बताएं, अब आप इतने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में हमारे सामने अब आ रहे हैं और लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं. अब ऐसा होता है बाहर जाते हैं तो लोग आपको उसी कैरेक्टर के नाम से बुलाना शुरू करते हैं. जाहिर है लोग देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं. अच्छा, इससे पहले भी जो मैंने बड़े बड़े कैरेक्टर्स किए हैं उनके हवाले से भी लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, बात करते हैं. और अभी इंशाल्लाह ताला इसमें जो आगे मैं और कैरेक्टर लेके आऊंगा वो भी इंजॉय करेंगे. कैरेक्टर कौन से जिनका अभी तो नहीं बताना ना, कुछ बातें जरा सीखे राज में भी रखनी चाहिए. और मुझे ये सबसे ज्यादा कलमजी पता कहाँ लगता है, हंसी मुझे सबसे ज्यादा कहाँ आती है, जब हर बात में ये टांग अटकाते हैं कि कहीं कोई दानिश्वराना बात मैं मिस ना कर बैठूं. वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने टांगे दी हुई है तो टांग हराऊंगा नहीं मैं. देखा ना, ये गैर जरूरी फिक्र. ये कोई आप गैर साहब जरूरी ने तो नहीं है. बता दी उन्हें आप सबसे अच्छे कब लगते हैं. आप मुझसे पूछे मुझे आप कब सबसे ज्यादा हंसी आती है? ये तो मैंने पूछा नहीं, आप बताए ना. जब आप गुरु बनते हैं ना तब मुझे बहुत हंसी आती है और आफ्ताब साहब को इतनी इरिटेशन होती है. अरे मैं सदके जावा, बड़ी सोनी लगन रही है. क्या कह दिया तुमने? की कह देता मनूला दी कसम, दिल का उमो करने लग पे है. अच्छा, मेरी तरफ नहीं, उसकी तरफ करो, मेरा दिल का उमो नहीं कर रहा. वो कहते ने ना सुनाना तीनू कहना तीनू ते सुनाना नू नू वो च करेगा, सुनाओ नहीं रहा हूं. तू अच्छा लग रहा है इसलिए तेवल तक दिल कर रहे हैं. गल है कि विचों. अच्छा आफ्ताब साहब, टीवी इंडस्ट्री का फ्यूचर आप क्या देखते हैं जब ये कॉमेडी इतनी ज्यादा हर चैनल पे, लोग बोर भी हो जाते हैं कि क्या मोनोटोनस चीजें हर चैनल पे चलना शुरू हो गई. टीवी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अभी और फ्लरिश करना है और ग्रो करना है. ये ग्रोथ तो हो रही है, जो धड़ाधड़ चैनल्स खुल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जू मैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान को तरक्की करते देख रहा हूँ. इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ठीक ठाक तरक्की करेगा और ये इंडस्ट्रियलाइज होगा आहिस्ता आहिस्ता. ये छोटी छोटी चीज़, इसमें हमारी कोई शऊरी को बहुत बड़ी कोशिश, कोई हमारी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला है ना. चंद दिन पहले जैसे मैंने गुजारिश की थी कि अल्लाह ताला चूँकि इंतहाई रहीम है, उससे फिर हम पे रहम आता रहता है, बार बार रहम आता है. तो मीडिया एज अ होल, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूरा मीडिया फ्लरिश करेगा. और कोई बईद नहीं कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री भी, मरी हुई फिल्म इंडस्ट्री भी बारे दिगर रिवाइव हो जाए. अच्छा, फिल्मों से याद आया, आपको तो एक शौक भी है फिल्में देखने का. अब रिसेंटली आपने कोई अच्छी फिल्म देखी, शेयर करें हमारे साथ. अच्छी फिल्में तो बहुत कम हैं, ये भी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अच्छी फिल्म, या ये कि मेरे पास टाइम भी बहुत महदूद होता है. पहले तो मैं डेली देखने वालों में से हूँ. तो तुम ऐसा करो किसी दिन टाइम निकाल के ना मेरे पास आओ, मेरे पास बड़ी ढेर सारी फिल्में पड़ी हुई हैं, वहां से कोई सिलेक्ट करके ले जाना. देखना आपको कौन सी फिल्में पसंद है? बड़ी पंजाबी की मेरे पास बड़ी ढेर सारी फिल्में पड़ी हुई हैं. मैं एक अच्छी फिल्म का तज़किरा करने लगा था, पंजाबी फिल्म, ज्यादा से ज्यादा हीर रांझा. मैं हमेशा कहता हूँ कि हीर रांझा मसूद परवेज साहब की, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की लाजवाल फिल्म. हाँ जी, वैसी फिल्म कोई बना नहीं सका बाद में. मेरे पास और भी बड़ी बड़ी पड़ी. और कौन सी? नेम वन. तू गाना ही ना, मैं तुझे दिखाऊंगा. मैं दिखाऊंगा, ये मुझे घर बुलाने के चक्कर में ना खाऊंगा. अच्छा यार ना, मैं आजकल फिर मैंने देखी है, पता नहीं कितनी दफा, रॉब रॉय. अच्छा, वो है फिल्म यार, वो देखो, लियम नीसन की और जेसिका लैंग. ये तो मुझे लिख देना. ये दुआई है, मैं लिख दूं. ऐसा बेवकूफ है तुम. रॉब रॉय, रॉब तुम्हें नहीं याद? तुम समझो तुम जैसे रॉब नहीं होते हो. राय साहब, रॉब रॉय बहुत बड़ा स्कॉटिश हीरो था, मुजाहिद था, और बड़ी बहादुरी और दलेरी के साथ इसने इस्तबदाद के खिलाफ जंग की, लड़ाई की, और
جیسے بریو ہارٹ تھا, یہ اس طرح کا کیریکٹر تھا. اور یہ فلم میں نے بہت پہلے, میں نے اس کی کہانی بھی پڑھ رکھی ہے, اس میں جو چیز مجھے سب سے قابل ذکر لگی ویسے تو اس کی سینیمیٹوگرافی اس فلم کی, اور پھر اس فلم میں وہ کیا ہے راس, وہ جو ولن تھا اس کا, راس رائے نہیں خود ہی تو بھی کہا ہے تم نے, وہ فلم کا نام بتا رہے تھے آپ نے. وہ اس کا ولن, وہ تو خیر ان سب کو آؤٹ سمارٹ کر گیا. اس کی پرفارمنس تو سبحان اللہ, وہ تو اس جیسی ولن, مطلب یہ ویمپ کا یہ رول اس سے اچھا میں نے اور کہیں شاید بہت کم دیکھا ہو. یا ویسے میں نے نوٹ کیا کہ یہ انگریز لوگ جو ہے نا, یہ ولن بہت سٹرونگ رکھتے ہیں اپنی فلموں میں, نہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے, بڑا خاص بات نوٹ کیا آپ نے جو ہم نے پہلے نوٹ نہیں کی تھی. لیکن اس میں جو میں پیغام دینا چاہ رہا تھا نا, جو اس کے اندر میسج تھا, وہ یہ تھا کہ یہ بڑا دلیر اور غیرت مند آدمی کی کہانی ہے, لیام نیسن کی. تو اس کا بیٹا بار بار سنتا ہے اس کے منہ سے کہ یہ آپ کیا بار بار آنر 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 کی چکر میں پڑے ہو, آنر کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا, آنر کو ایکسپلین کرو. تو وہ جو اس کی تفصیل بتاتا ہے, بہت خوبصورت ڈیفینیشن, کہتا ہے بیٹا یاد رکھنا, آنر وہ تحفہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے. واہ 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 واہ. جس شخص میں آنر نہیں ہے, اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو کبھی کچھ نہیں دیتا. تو یہ فلم ہر لحاظ سے, اسکرپٹ کے حوالے سے, سینیمیٹوگرافی کے حوالے سے, ڈائلاگز, پرفارمنس, لوکیشنز, اسکاٹ لینڈ کی لوکیشنز. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, بڑے بڑے دریا ہے وہاں پہ. آپ گئے اسکاٹ میں کئی دفعہ اسکاٹ لینڈ میں پھرا ہوں. یار اصلی کی کیا بات ہے, ہمیں یقین کیوں نہیں آتا یار یہ واقعی کیا ہوگا. میں یہ کوٹ میں نے وہیں سے لیا, اسکاٹ لینڈ سے, اسکاٹش ہے یہ, اسکاٹش ہے, وہاں سے لے کے آیا. یہ وہ والا اسکاٹش نہیں جو لاہور میں جی، اسکاٹش جی، بہت ملتے ہیں, جس کا کراچی ذکر میں بھی یہ کرتے ہیں. اسکاٹش ملتے ہیں. اور نہیں, میں وہاں سے اسکاٹ لینڈ سے جا کے لے کے آیا ہوں. ایک آپ اپنی گٹھری کا بھی ذکر کرتے ہیں, اسی میں سے تو وہ نہیں پانڈ نکلی کا, جائے. گٹھڑی نہیں پانڈ ہوتی ہے. اور وہاں کیا کرنے گئے, گلاسگو کیا کرنے گئے تھے, گورنر سرور سے ملنے. یار آہستہ بولو یار, ایک تو تم اونچا اتنی بولتے ہو, میں کان پہ پردے پاتے ہو نہیں یار, حد ہو میں گئی. اتنا اونچی, حالانکہ میں عام طور پہ اس سے کہیں زیادہ اونچی بولتا ہوں. اتنے دن ہو گئے میں نے کان کی میل نہیں تھی نکلوائی, صاف نہیں تھے کی ہے, یہ اونچا بولتا ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں. چلیے مودی, یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہزاروں نیک کام ایسے ہیں جو صرف حکمران کر سکتے ہیں, لیکن حکمران ہمیشہ ایسے کاموں میں دیر کر دیتے ہیں. ہمارا یہ مستقل سیگمنٹ ایسے ہی نیک کاموں کی نشاندہی کرے گا جو حکمرانوں کی عدم دلچسپی کا شکار ہیں. جی آفتاب صاحب. اور میں پہلے جیسے گفتگو کر رہا تھا کہ میں اس سیگمنٹ سے بہت امپریس ہوا. نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اس کا نام ہی نیک کام میں دیر ہے. واقعی وہ دیر ہے جو حکمران جس کا ارتکاب کرتے ہیں, کیونکہ ہر بڑا کام, ہر نیک کام, سارے ہی نہیں لیکن زیادہ تر ریاست کو ہی کرنے چاہیے, حکومتوں کو کرنے چاہیے. یہی سب سے پاورفل ادارے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. میں کہتا ہوں دس از ریلیف اینڈ اے ریلیف ڈیلیڈ از ریلیف ڈینائڈ. کہ آپ نے عوام کو, یہ تو منیمم ہے جو آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی سہولت پیدا کریں, عوام کے لیے کچھ ایسی چیز بنا جائیں کہ آپ کو رہتی دنیا تک اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے. اور میں سب سے بڑی مثال اس خطے میں ہمیشہ شیر شاہ سوری کی دیتا ہوں. آج بھی اس کی بنائی ہوئی سڑک اچھے لفظوں سے اسے یاد کرواتی ہے. نہ صرف سڑک بلکہ وہ ایک پورا نظام تھا, سڑک کا ایک نظام تھا. ان دنوں ڈکیتیاں ہوتی تھی, چوری, رازنی, لیکن اس نے ایسا پیٹرولنگ سسٹم بنایا تھا. یہ جو حالیہ پیٹرولنگ سسٹم آپ نے رائج کیا ہے نا مشرف دور میں, جس کا کریڈٹ میں ہمیشہ پرویز الہی کو دیتا ہوں, وہ شیر شاہ سوری کی اختراع تھی. یہ جو M1, M2, M3 ہے نا موٹر وے, اس کے دونوں اطراف پہ یہ جو لاہور, اسلام آباد, اسلام آباد پشاور اینڈ فیصل آباد M3, ان سڑکوں کے کناروں پر پھلدار درختوں کی آپ شجرکاری کر دیں, آپ یقین کیجئے 5 ارب روپے آپ سالانہ کما سکتے ہیں. ٹوٹل لینگتھ ہے M1, M2, M3 کی 670 کلومیٹر. اس میں 500 کلومیٹرز ایسے ہیں جن پر بڑی آسانی سے, ٹرین بڑا سمپل ہے, بڑا آسان ہے, بڑا سہل ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ پھلدار درخت لگائیں,
5 अरब रुपया सालाना मुफ्त में बैठे बैठी उस जमीन पर कमाएं जिसे आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। वाह 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 वाह, कितना अच्छा है दिया। और लोग भी छाव में बैठेंगे। हाँ, छाव में बैठना तो और बात है। अब मोटरवे पे कौन छाव में बैठता है बेवकूफ? और नहीं, उसके साइड के इलाके के जो लोग होंगे आके दरख्तों के नीचे छाव में वो बैठेंगे। अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तुम कभी मोटरवे पे नहीं गए? क्या हूँ? तो तुम्हें नहीं पता साइड पे हेज लगी हुई है? वो हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह बड़े तेज है, वो उसको काट के रास्ता बना लेते हैं। नहीं नहीं, ये अनलॉफुल है, ये गैर कानूनी है। अगर ये रास्ता बनाते हैं तो गलत करते हैं। अच्छा, आपके लिए ये बात मजीद हैरत का बायस होगी कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे टोल टैक्स में कितने पैसे इकट्ठे करता है? जरा अंदाजा करो कितना लंबा चौड़ा पैसा लेते हैं। 5-10 अरब रुपया होएगा। यानी कैसा साहब आदमी है कि 5 और 10 में कोई फर्क ही नहीं है। ये 2 अरब रुपया कमाते हैं औसतन, कभी 1.25 अरब, कभी 2.5 अरब एक साल में। एक साल में। सिर्फ ये टोल है और ये मुफ्त में। वो तो सड़क का टैक्स है ना, ये मुफ्त है और उसका डबल है। लेकिन आफ्ताब साहब, हैरत की बात है, हुकूमतें आई और गई, मोटरवे बने कितना अरसा हो गया, किसी के ध्यान नहीं है इस बात। ध्यान जाता भी है ना तो ये वो खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हैं जो ब्यूरोक्रेसी की नजर हो जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी एक ही बात करती है कि जनाब इसमें हमें क्या बचेगा, इतना सा प्रोजेक्ट, उसमें पॉलिटिशियंस खा पी जाएंगे, हमारे पास तो पहुंचेगा ही कुछ और नहीं। कल ही आप निशानदेही कर रहे थे करप्शन की। और करप्शन बेइंतहा है। और मैं फिर ये एक बात, एक सरीहन गलत बात दिल पे पत्थर रख के कर रहा हूं कि अगर इन्होंने करप्शन के बगैर जिंदा नहीं रहना, सोच लिया है कि करप्शन ही करनी है, अदरवाइज मौत वाकई हो जाएगी, तो थोड़ा सा दिल गुर्दा करें। ये बड़ा पैसा कमा सकते हैं करप्शन करके भी, मुल्क का फायदा भी हो जाए, जो गंद इन्होंने अपने लिए खाना है वो भी खा लें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते जाएं। ये चाहते हैं कि कोई एक ही दफा बड़ा प्रोजेक्ट आए 2-4 बिलियन डॉलर्स का, जिसमें से एक बड़ा स्लाइस पॉलिटिशियंस ले ले, एक बड़ा स्लाइस ब्यूरोक्रेसी ले ले, एक टेक्नीशियंस ले ले, बाकी रही सही कसर ठेकेदार ये वो, और अवाम के हाथ में एक छिला हुआ प्रोजेक्ट जिसकी सारी क्रीम आपने स्किम कर ली ऊपर से, एक टूटा फूटा प्रोजेक्ट उसके पास आ जाए। अवाम के पास तो केक आता है ना, तो वो यूं झपटते हैं उसके ऊपर और सारे वो क्रीम क्रू मुंह पे लग जाती है उनके। देखा कभी? जी जी देखा, मैंने बिल्कुल देखा। ये तो है मोटरवे। आपके मुल्क में ये जो नेशनल हाईवे है, कभी इस पे गौर किया है कि ये क्या माइलेज क्या है, कितने किलोमीटर है? ये 5000 किलोमीटर लंबी है आपकी नेशनल हाईवे। 5000 किलोमीटर? जी ओए बड़ी लंबी है भाई। यार ये क्या, तुम हर बात पे हैरान होना, ये कोई तुम्हारा क्यों है, कॉमेडी है, क्या है? ओ यार मैं पहली दफा तुमसे सुन रहा हूँ, हैरान भी ना हूँ यार। तुम हैरान, तुम मुंह जुबानी हैरान, तुम दिल ही दिल में हैरान हो, दिल ही दिल में। यार ये उसको पता चलना चाहिए ना मेरी शक्ल से कि मैं हैरान हुआ हूँ। भाई तुम बस इसके तरफ ध्यान रखो जी, और जब तुम हैरान हो ना, तुम यूं कर दिया करो, कोई एक जंप लिया करो, बोला मत करो। ठीक। यार मेरा बोलना ही तुम्हें बुरा लगता है। अच्छा अच्छा यार, जी, तुम करो मैं क्या कह रहा था? मैं तेरा मुंशी लगा है यार। तुम रोकते तो हो ना मुझे। अब नेशनल हाईवे की बात। नाराज हो गए तुम? हाँ नाराज हूँ। चलो ठीक है। यार तुम मनाओगे नहीं मुझे? नहीं, मैं तुम्हें नहीं बनाऊंगा, मैं ब्रेक में बनाऊंगा तुम्हें। अच्छा जी, हम कंक्लूड कर रहे हैं इस गुफ्तगू को कि ये जो 5000 किलोमीटर है, इसके किनारों पर यही नेक काम जिसमें आप देर करते चले जा रहे हैं, वो करेंगे तो पता है कितना होगा मुनाफा? 50 अरब रुपए, 50 अरब रुपए और 5 लाख नई जॉब्स। तो आफ्ताब साहब, ये मोटरवे पे कितने दरख्त लगाए जा सकते हैं? तकरीबन 13 लाख दरख्तों की गुंजाइश है। 13,000 एकड़ बनती है कुल लैंड, विच इज मोर देन द जंगल्स ऑफ छांगामांगा। तभी, लेकिन अगर इतना दरख्त लगेंगे यार तो हमारे मुल्क में बंदर ज्यादा नहीं हो जाएंगे? वेलकम बैक नाजरीन। ओए वाह 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 ताबी बाहू, ओ मजा आ गया। बड़ी दुकानदारी सजाई है क्यों यार, कमाल है। इधर बात करो, इधर एंकर ये है, मैं नहीं हूं। वो एंकर है कि हाँ जी। ते तू एवं चौधरी बन के बैठा है। और वैसे बादशाह बड़ा मजा आ रही है, बड़ा अच्छे है सोफे सूफे ला के। ओए ऊपर तू ते उधर दूजे पासे भी करना है काम। क्या काम?
ਉਹ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੁੜ ਕਿੱਧਰ ਕਰਨਾ ਆਂਡੇ ਕਿੱਧਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਓਏ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੱਝਾਂ ਮੁਝਾਂ ਖੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ यार क्या इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं और देखते हो? ਓਏ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕੀ ਅੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ अच्छा मुझे ये बताओ, हाँ जी तुम एक पुराने कैरेक्टर हो, गवर्नमेंट कॉलेज में जिन दिनों में पढ़ा करता था ना, ਓਏ ਉਦੋਂ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਛੱਪ ਛਪਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾ 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 ਮੋਸੂਲਾ ਲਾ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ वो क्यों? ये नहाता नहीं था। ਓਏ ਕਾਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰ यार अच्छा मैं पूछना जो बात चाह रहा हूँ हाँ, कि 30-35 साल पहले भी तुम ऐसे ही थे, ये क्या स्याह मूछे स्याह कलमे ये क्या है? ਓਏ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਖਜ਼ਾਬ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾ ਈ तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? और मुझे यकीन है इस पग के नीचे टिंड होगी। ओए टिंड नहीं तो आधे थले की किताबें होंगी ये पहले मुझे बताया बाबूजी कि ये क्या ड्रामेबाजी शुरू की ये है क्या ड्रामेबाजी? एक नया शो है हम कर रहे हैं, बड़ा फन्ने खां शो है इस चैनल का, फन्ने खान शो दे मांगते हैं इसका नाम है। हाँ तो आप पहलवान जी नबीना आप पढ़ नहीं सकते क्या लिखा हुआ है? 5 जमातें तो आप मेरे सामने पढ़े थे। यार तू इत्थे बैठा तेरा सारा प्रोग्राम दुनिया देख दी साडे लिए भी कुछ कर दे साडे महल्ले लिए क्या तुम्हारे मल्ले ये गिर ना जाना जो हरकतें ਉਹ कर ਨਹੀਂ ਗਿਰਦਾ ਯਾਰ ਸਭ ਵੀ ਕਰ ਮੇਰਾ ਗੰਦ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਬੀ ਬਾਉ ਕਿ ਮਾਦੇ ਇਲਾਕੇ में ना बड़ा गंद है अच्छा जी, ओए होए कहाँ नहीं है? ओए माशाल्लाह तुम भी खुद कफील हो लेकिन साडे बल ते बेड़ा ही गरक होया है कसम नाल वो चूचे दे मुंह वाला नहीं है अपना हमजा शरीफ वो तो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है, वोट नहीं दिया था तुमने? उस दौर की बात बताऊं तुम्हें मैं ताबी बाऊ ये लोग वोट लेने आते होते थे ना इतने इतने वोट इन्हें हम पकड़ा दिया करते थे और एक टैडी पैसा राह में हम पे जो हमने कभी लिया हो और अब पैसे नहीं लेते हम बस कोई काम शाम ले लेते हैं, अब पैसे एजेंसियां ले लेते हैं, नहीं वो वो बस थड़ा पक्का करवा लेते हैं, नाजायज काम करवा लेते हैं। शर्म करो पहलवान जी, शर्म करो। ये जो गंद है तुम्हारा अपना इकट्ठा किया हुआ है। और बीबी आप मेरे साथ गुफ्तगू करें मुझे डॉक्टर ने दानश्वरों से परहेज बताया आप बताएं, आप फिर उन्हें काम कहते हैं कराने को आपके इलाके के? ओ वो क्या बताना है जी उन्हें वो अच्छा हमजा की बात कर रहे थे। ले हमजादी की गल करा ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਲਾਟੂ ਹਰ ਤੀਜੇ दिन आ जाता क्या क्या? पित्तल दा लाटू वो मैंने उससे कहा कि हमजा भाई वो खुदा का नाम ले यहाँ से ये चिंगची का गंद मुकाए और चिकन छोले खा के तितर हो जाता है वैसे वहां पे उस इलाके में बहुत बड़ा अलमिया है। ये जो चिंगची का शोर है, बाकी आप वहां चले जाएं यूं लगता है कि आप एक पहम जीटी रोड पर जिंदगी गुजार रहे हैं और उस रोड के बल्कि बीच में सो रहे हैं। ला 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 मोसुला नहीं सो सकते तो फिर कब सोते हो? वो कानों में रूहियां तुन के सोते हैं वो ते ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਤੁਨ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਊ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਹੁਤੇ ਬਣਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਨਾ ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਾਊ ਜੀ ਉੱਥੋਂ 500 ਬੰਦਾ अच्छा उर्दू में क्यों नहीं बात करते हो? ਉਹ ਯਾਰ ਇਧਰ ਗੱਲ ਗੰਢੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਬਾਊ ਤੰਗ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਨਿਕਲਾ गाली नहीं आती जी आग लग जाए ना बीबी तो फायर ब्रिगेड जो है ना वो खोती रेडी पे आ रहा होता और पिछली दफा आधी आग खोती ने बुझाई है हद हो गई है खोती अब कोई फायरमैन है? वो समझिया कदों ना इन्ना कोई पानी नहीं होता अच्छा फिर वो हर दफा कहते हैं जी कि हाँ जी करेंगे पहलवान जी करेंगे पर लेकिन नहीं ये एंड पे क्या कहते हो? पर लेकिन नहीं ये मसला तो अंदरून शहर में आम देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा इंतहाई खतरनाक बात है ये। अक्सरियत उन प्लाजों की इलीगल है लेकिन मजबूरी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, रॉयल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये 3-4। अल्लाह तेरा भला करे ਉਹ ਕਸਮ ਨਾਲ ਐ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 5-6 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ पर लेकिन नहीं क्यों कहते हो? पर लेकिन नहीं हमारा सेगमेंट है मेहमान जसूसी, जिसके अंदर हम आपको अंदर की खबरें बताते हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ बैठा हुआ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਬੀ ਜੀ अच्छा ये हो सकता है कि आप अपनी असली आवाज में बोलें, सरदार यावर हयात खान बनने का भूत क्यों आपके सर पे सवार है? ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਹੀ ਯਾਵਰ ਹਯਾਤ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 75 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਵ ਲਾਈਡ ਨੇ ਖੂਬ ਧੋਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ अच्छा जी, ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ हाँ जी बहुत मारा था मुझे याद। ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ यानी कवि खान साहब?
और कोई PTV च कवि वड़ैश भी हैगा जी कवि मेरे को आ गया अच्छा जी ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਜਿਹਾ ऐसे बहुत प्यारे हैं कवि खान साहब ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜੀ ਦਫਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ यावर साहब भी हम मैच हार गए हैं उन्होंने हमारी बहुत थुकाई की है रोना शुरू कर देता जी कवि कमाल ने है। दसो यार प्यार हैगा सी ना जी ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਸੀ अच्छा ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ वैसे ये जज्बा तो आज भी है, लोग आज भी अफसरदा हो जाते हैं अगर पाकिस्तानी टीम हार लेकिन जाए। एक बात मैं आपको बताऊं इंडिया इज अ वेरी बैड लूजर वो कहते हैं कि वन शुड लर्न टू बी अ गुड लूजर टू स्पोर्ट्समैनशिप का तकाजा तो यही है ना कि आप हार भी जाए ना तो एक फातिहाना आपकी शिकस्त होनी चाहिए लेकिन जो ही ये हारने लगते हैं इनकी तो ਮੱਤ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਅਕਲ ਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਨਾਲ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ नहीं वैसे सरदार साहब मजा नहीं आया ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਪੜਵਾ ਲਵਾਂ ਕਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਆਫਤਾਬ ਜੀ आपके हैट की क्या क्या ज्यादा से ज्यादा कितने का होगा ये ਇਹ $150 ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ तो $150 आप मुझसे ले लीजिएगा ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਆਏਗਾ ਕੌਣ ਉਥੋਂ ਜਾ ਕੇ आप क्यों समझते हैं ये इतने मखबूतुल हवास है? ਬੀਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ATM ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਫਸਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਮਾਮੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਕਮਾਂ ਫਸ ਗਈਆਂ हालांकि कोई अहमक से अहमक बंदा भी अगर कार्ड फंसा भी बैठा है तो मैनेजर को फोन नहीं करेगा उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है कि ये यूनिवर्सल नंबर है वहां पे करते हैं ਤੂੰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਛਲੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ सरदार साहब ये आप मुबालगा राय कर रहे हैं ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਆਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਜ਼ਿਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ये कोई मुखबरी नहीं है ये कोई अंदर की खबर नहीं है ये ऐसी आपकी चश्मे तस्वर है ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਫਤਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ वेलकम बैक नाजरीन। अभी कल मैंने एक बड़ा ही नेक काम किया यार वो हमारे मोहल्ले में ना एक हमारी मासी हैं उन बेचारों का ना गटर बंद हो गया मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और मैं सीधा बल्दिया वालों के दफ्तर चला गया मैं लो जी मैंने उस बंदे को मोटरसाइकिल के पीछे बताया उसने ना वो लंबा सा बांस नहीं होता जो गटर हाँ खोलते जी हैं हाँ जी वो क्या लगा मैं अकेला नहीं उठा सकता अद्धा उसने मेरे मोटे पे रखा अद्धा उसने अपने मोटे पे रखा लो जी हम वापस आए उस बेचारे ने पूरा जोर लगा के गटर खोला पता चला उसके मियाँ की कमीज फंसी हुई थी तो वो पागल था क्या वो मुझे क्या पता मेरा मियाँ थोड़ा था उससे पूछो जाके बताओ मैं बकरियां पाल लूं फिर बकरियां तुम हिरन पालो हैं हाँ जी उसका क्या फायदा बल्कि होगा आज मैंने बताना ही हिरनों के बारे में था आहा ये इस कदर मुनाफा बख्श काम है कि तुम सोच भी नहीं सकते अच्छा न्यूजीलैंड का शुमार दुनिया के इंतहाई छोटे ममालिक में होता है 44 लाख टोटल आबादी है लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिरन एक्सपोर्टर न्यूजीलैंड है न्यूजीलैंड में तकरीबन 2800 डियर फार्म्स हैं वहां पर 1 करोड़ हिरन पाले जाते हैं 1 करोड़ कितनी बड़ी क्वांटिटी है आपका मुल्क जो किसी जमाने में अटा पड़ा था हिरनों से थर का सहरा चोलिस्तान पोठोहार और तुम जैसे शिकारियों ने ना शिकार कर के मार दिया नहीं ये मुझ जैसे नहीं ये जालिम शिकारियों ने और पोचर्स ने वो क्रिमिनल्स हैं और ये शिकार नहीं है माफ कीजिएगा ये कत्ले आम है
अच्छा आफ्ताब साहब, ये हिरन सहराओं में भी पाला जा सकता है? भाई इसका असल मस्कन है ही सहरा, असल घर इसका सहरा है, हिरन सहराओं में होते हैं। आम आबादी में तो ये चूंकि जंगली जानवर है ना, थर का इलाका, चोलिस्तान, पोठवार आइडियल, और फिर बलूचिस्तान के कुछ इलाके आइडियल है इसके लिए। आपको ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। अगर हुकूमती सतह पर आप थोड़ा सा इसको सीरियसली लें। अच्छा, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने इसके ऊपर लाजवाब रिसर्च की है और एक बहुत उम्दा मॉडल फार्म बनाया है। अब आप उनसे मदद लें, आप पंजाब रेंजर्स से पूछें, सिंध वालों से पूछें कि इसे कैसे एक अच्छा हैबिटाट मुहैया किया जा सकता है। साइलेज के जरिए इसकी खुराक, यानी खुराक प्रिजर्व करके इसको दी जा सकती है। बारानी इलाकों में और सहराई इलाकों में भी बारिश का पानी हिरनों के लिए स्टोर किया जा सकता है। आपको कोई लंबा चौड़ा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। और एक हिरन एक बकरे से कम 4 गुना ज्यादा महंगा बिकता है। अगर आप गोश्त ही उसका दें, एक्सपोर्ट होता है, और उसके गोश्त में बड़ी तासीर है। जंगली है ना, जंगली जानवर है, जड़ी बूटियां खाता है, और बड़ा बाकमाल जानवर है। तो ये सबसे आसान तरीका है मुनाफे का? इंतहाई आसान तरीका है। आप 1 लाख एकड़, यार कुछ भी नहीं होते 1 लाख एकड़, 2.5 करोड़ एकड़ आपके यहां बेकार पड़ा हुआ है, 2.5 करोड़। आप उसमें से 1 लाख एकड़ आप वो लें, खूब इसकी पब्लिसिटी करें, प्राइवेट बिडर्स लें, लोगों को एनकरेज करें, क्योंकि रियासत एक गरीब इदारा है। अब पाकिस्तानी स्टेट अब अच्छी ना तो एम्प्लॉयर है और ना अच्छी इन्वेस्टर। पाकिस्तान का प्राइवेट सिटीजन, प्राइवेट बिजनेसमैन बहुत अच्छा एम्प्लॉयर भी है और बहुत अच्छा इन्वेस्टर भी। उसको इस तरफ लाएं। अच्छा जी। जी जनाब। और चंद 100 एकड़ के यूनिट्स बनाकर आप 20-25 इन्वेस्टर्स को दे दें, तो ये प्रोजेक्ट आपको सालाना इंतहाई थोड़ी एफर्ट करके पता है क्या देगा? गेस करो, मैं आपसे पूछ रहा हूं इकरा, कि कितने अरब का मुनाफा हो सकता है हमें? 3-4 अरब तो जरूर होगा। ये 10 अरब मिनिमम है टू स्टार्ट विद, टू बिगिन विद। ये 1 खरब तक जा सकती है इंडस्ट्री। वो तकरीबन $1 बिलियन होंगे। ये तो वही हिसाब हो गया ना, हिंग लगी ना फटकरी ते रंग भी चोखा। और आप देखिए कितना इलाका आपका जो बेकार पड़ा हुआ है, बंजर वीरान, उसे यूटिलाइज करेंगे। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी देंगे, एग्रीकल्चर को कितनी ग्रोथ मिलेगी। उसके साथ साथ जो शख्स अब हिरन पाल रहा है, उसने जितना पैराफर्नेलिया वहां पे लगाना है, वो साथ नील गाय भी पालेगा, 12 सिंगा भी पालेगा, वो साथ घोड़े भी पालेगा, बकरे भी पालेगा, गधे भी पालेगा। गधे नहीं, गधे नहीं पालेगा। देखा, इसके फिक्रे पे गौर करो था, ये क्या कहता है। आपने भी तो इतनी नहीं, सीरियस एक से मैंने क्या कहा? तुमने कहा कि नहीं गधे नहीं पालेगा। नहीं, मैंने कहा नहीं गधे, मैंने ये, मेरा कहने का मतलब था कि नहीं गधे नहीं पालेगा। तभी तुम बात आ जाओ। पंक्चुएशन की गलती है, नहीं गधे नहीं पालेगा। और तुझे हमसे ज्यादा ग्रामर आती है। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा जी, गधे नहीं, ऑस्ट्रिच पाल सकते हैं आप, शुतुरमुर्ग। वही, उसका तो अंडा ही 2.5 मन का होता है। वो कितना महंगा बिकेगा यार। कैसा अहमक है, 1 किलो का अंडा। उसका साइज तब बड़ा था, मैं समझा को 2-2.5 मन वजन होगा। इस तरह नहीं होता, इतना बड़ा। वही यार, उसके अंडे को फ्राई करे तो वो बहुत बड़ा वलतोया चाहिए होगा उसे फ्राई करने के लिए यार। तभी ये 12 सिंगा क्या होता है? 12 सिंगा स्टैग, 12 सिंगा जिसको रेंडियर कहते हैं, इसे मूस भी कहते हैं, मूस। वो इसके इतने ज्यादा नाम है तो पता कराओ, ये कहीं दहशतगर्दी ना हो। अच्छा, मुझे हंसी नहीं आ रही। वो तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ, हंसा कौन बेवकूफ रहा है तुम्हें? तुम हंसाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं बाबा, मैंने सीरियसली कहा है। इसका शनाख्ती कार्ड चेक कराओ। है परवीन बबली एडी मशहूर। नहीं तो तुम्हारा गेटअप चेंज क्यों है? ताड़ा सेट नहीं चेंज होया, मैं कुछ किया? मेरा गेटअप चेंज हो गया तो तू गल्ला करन दे। फिर भी पिछली दफा बड़े लंबे लंबे बाल थे तुम्हारे। तभी ना पूछना मेरे को की होया है। फिर भी बताओ तो सही। एक पिंड गए सा काम थे। काम कौन सा? हाय हाय, ये काम और कि मैं पोलियो के कतरे पे आन गई सा। उते पता की होया? क्या? उन्होंने मैनू कुटिया भी है ते नाले मेरी टिंड भी कर दी।
नहीं तो तुम्हारी टेंट कैसे हुई? ਇੱਥੇ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਬਾਸ਼ਬੀਨ ਦੀ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ। ओए ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ओए ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, क्या गए? ਕਵੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ। यानी मेरी एहलिया है। तुम क्यों हंस रही हो? ਵੇ ਹੱਸਣ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੱਸਣ ਦੇ ਸਨ। ਲੈ ਟੱਪਦੇ ਟਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਰਸ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਰਸ ਤੂੰ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਚਰਸ ਵੇਚਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। अच्छा ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਆਓ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਿਆਂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ DNA ਕੀਤਾ? अच्छा नहीं बताओ सी बाकी किधर गई? ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। नहीं तुमने वाकई नहीं उठाई थी ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ। तो फिर उसने टेंट क्यों की? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨਿਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਟੁੱਟਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। हाय हाय ਲੁਕਦੀ ਲੁਕਾਂਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨੇਰੇ। चलो कोई बात नहीं, विग इस्तेमाल कर लिया करना। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਟਿੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, अच्छा वो भी ਉਹ ਵੀ ਵਿਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। वैसे आफ्ताब साहब, हमारे माशरे में भी बहुत जुल्म किया जाता है इन ख्वाजा सराओं के साथ। ओहो तौबा तौबा तौबा, और ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी, बड़े गुनाह की बात है कि एक तो ये वैसे महरूम तबका होते हैं और हर जगह पर इनका इस्तेसाल किया जाता है। मैं ज़ाती तौर पर बेपनाह हमदर्दी रखता हूँ इनके लिए। और पॉइंट ऑफ रेडिक्यूल ये क्यों बनते हैं मेरी तहरीरों में, मेरे शोज़ में भी, इसलिए कि ये इनका सेलिंग पॉइंट है। ये वाहिद चीज, बेचारे पढ़े लिखे तो होते नहीं, ये सेल्फ मॉकरी करके अपना रिस्क कमाते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ रिडिक्यूल भी अगर ना हो तो भूखे मर जाए। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਡੇ ਤੂੰ। हाँ तो और क्या, अगर ये पढ़ लिख जाते ना, मैंने पहले भी गुजारिश की थी अगर आपको याद हो, कि फैशन इंडस्ट्री पे छाए हुए हैं ये लोग। अगर क्यों, वो पढ़े लिखे हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा ही नहीं तो उसे क्या पता फैशन क्या होता है और क्या नहीं। ਜ਼ਾਲਮਾ ਖਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ नहीं तो बच्चे ਨੂੰ पढ़ाइए किस तरह? हाँ नहीं, ये तो फिर ये बड़ी बदनसीबी है इस माशरे की कि एक इंतहाई कीमती तबका, इंतहा दर्जे का ज़हीन तबका, ये बड़े ज़हीन लोग होते हैं। अल्लाह ताला का ये उस्लूब है कि अगर वो कोई एक चीज़ लेता है तो उसके एवज 70 चीज़ें दे देता है। आप उन 70 चीज़ों को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। आपको पता नहीं कि इनके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी होती है। ये सिर्फ इसलिए कमज़ोर नज़र आते हैं कि मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। ये इसलिए पसमानदा रह गए हैं कि अनएजुकेटेड है। एक हंसना हंसाना है और सेल्फ मॉकरी, अपना तमस्खुर खुद उड़ाना है, ये एक वाहिद इनके पास पॉइंट ऐसा है कि जिससे ये अपना रिस्क कमाते हैं। सर मैंने तो सुना इनकी हुकूमत भी हुआ करती थी। हाँ जी, हुआ करती थी इनकी हुकूमत। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡੀ हुकूमत ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਟਿੰਡਾ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ हुकूमत ਦੀ ਪਈ। नहीं वाकई तुम लोगों की हुकूमत हुआ करती थी। ਸਾਨ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। बाबलो नैनवा एक सिविलाइजेशन थी, ये इराक मेसोपोटामिया का इलाका। ਵਿਜਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਰਾਕ ਤੇ ਮਸੋਲੇਨੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਹਾ। हाय, ये देखो ये बार बार ये बात कहते हैं, शनाख्ती कार्ड बनने का एक मसरफ था, एक वजह थी। नो एजुकेशन फॉर देम, नो जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर देम।